ندیم وکٹر صاحب جو ہے وہ میرے چاچو بھی ہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، گجرانوالا میں خداوند کی بہت بڑی خدمت کرتے ہیں، سیمنری میں ڈائریکٹر بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ وہ خداوند کے کلام کے لیے بہت حلیم ہے اور اس کے سورما ہے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی اور عزت کی بات ہے۔ ہاللیلویہ! آئیے خداوند کے خادم کو اپنی زوردار تالیوں میں ویلکم کرتے ہیں۔ دس از یور ٹائم پاسٹر ندیم وکٹر صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم پہ۔ اوور ٹو یو برادر، جو کچھ خدا نے آپ کے دل میں ڈالا آپ ہم سے شیئر کیجئے گا۔ آمین آمین، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ اگر آپ میری آواز کو سن رہے ہیں تو آمین کہہ سکتے ہیں اپنا ہاتھ۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ میرا دل خوشی سے بھرا ہے اور نہایت ہی دل شادمان ہے کہ میں اتنے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو پوری دنیا سے دیکھ رہا ہوں، جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے سم ٹائم ہم آپس میں بہت کم ملتے ہیں، لیکن اس وقت میں آن لائن دیکھتا ہوں بھائی سرفراز کو اور اس کی فیملی کو، اور بھی پاکستان سے کافی بہن بھائی ہیں۔ سو خداوند کی بڑی شکر گزاری ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے پیارے بھائی بڑے ہی خدا کی خوبصورت نوجوان خادم علی جناب پاسٹر عادل صاحب کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم تالیاں بجائیں، اور ایک زبردست فیلوشپ کا انہوں نے ارینج کیا ہے، اور ونڈرفل آپ نے یہ آرگنائز کیا، اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ مل کے خدا کے کلام کو سیکھوں اور برکت پا سکوں۔ سو میرا ایمان ہے کہ آج ہم کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، اور میں بھی آپ کی اس فیلوشپ سے برکت میں نے کافی ریسیو کی ہے، اور ابھی بھی میں آپ کے ساتھ مل کے خدا کی برکت کو سیکھوں گا۔ آمین۔ سو میرے ساتھ نکالیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے ایوب کی کتاب ہے، اور اس کا 8 باب ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ ایوب کی کتاب اور اس کا چیپٹر نمبر 8 ہے اینڈ ورس 7 ہے۔ میری ریکویسٹ ہے بھائی عادل سے کہ وہ اس ورس کو اگر میرے لیے پڑھ دیں تو میں شکر گزار ہوں گا۔ ایوب کی کتاب چیپٹر نمبر 8۔ جی، خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، ایوب کی کتاب اس کا 8واں باب 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور اگرچہ تیرا آغاز چھوٹا سا تھا تو بھی تیرا انجام بہت بڑا ہے۔ آمین آمین، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ سو میں آج اس کلام کو جو پڑھا گیا ہے، اس کا ایک ٹائٹل، ایک عنوان جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اچھا آغاز اچھا اختتام۔ اچھا آغاز اچھا اختتام، انگلش میں اس کو کہتے ہیں سٹارٹ ویل فنش ویل، سٹارٹ ویل فنش ویل۔ اور اس آیت کو میں جب انگلش میں دیکھ رہا تھا، اور بڑے اور اس میں گہرے جو میننگ ہے وہ میرے سامنے آ رہے تھے۔ Your future will be brighter by far than your past۔ آپ کا مستقبل جو ہے وہ بڑا روشن ہوگا، وہ بڑا برائٹ ہوگا آپ کے ماضی کی نسبت۔ آپ کا ماضی کیسا بھی ہے، لیکن آپ کا فیوچر ہے وہ بڑا ہی بابرکت ہوگا۔ جب میں اس بات کو سیکھ رہا تھا تو میں یسایہ کی کتاب کی خوبصورت ایک ریفرنس پہ میری نظر گئی، اور میرا دل اور بھی خوشی سے بھرا، جس میں لکھا ہے، یسایہ کی کتاب اس کا 43 باب اس کی 18 اور 19 آیت ہے۔ یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کر، یسایہ 43 باب اس کی 18 آیت ہے۔ یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کر اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظاہر میں آئے گا، کیا تم اس سے نا واقف رہو گے؟ ہمیں بیابان میں ایک
राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। देखो मैं एक नया काम करूंगा। योर फ्यूचर विल बी ब्राइटर देन योर पास्ट। खुदा हमारे मुस्तकबिल को नहीं देखता, हमारे पास्ट को नहीं देखता, वो कैसा था, किस तरह का था, लेकिन खुदा हमारे मुस्तकबिल को बेहतर करने वाला है, हमारे फ्यूचर को, हमारे इख्तिताम को अच्छा करने वाला है। और बी रेडी, खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े नए काम करेगा। आपके खानदान में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके घरानों में खुदा एक नई बेदारी का काम करने वाला है। और हम देखते हैं इस लॉकडाउन की हालत में खुदा ने बड़े बड़े जलाली काम किए। ऑनलाइन मीटिंग्स और वर्शिप और इबादत, बड़ी जबरदस्त खुदा ने जलाली काम किए। दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे, एक सेंटर में, एक ही रूम में खुदा लेकर आ गया, और हम एक दूसरे के वसीला से बड़ी बरकत पा रहे हैं। और खास तौर पे इस मजमून की तरफ मैं फिर आना चाहूंगा, जिसका उन्वान मैंने आपके साथ शेयर किया था, अच्छा आगाज, अच्छा इख्तिताम। आगाज अच्छा है, इख्तिताम भी बहुत अच्छा होगा। मैं जब सीखता हूं अय्यूब की किताब को, तो हम सीखते हैं कि पुराने अहदनामा में से बहुत सारे रवायात से हमें पता चलता है, और मुसन्निफीन बताते हैं कि अय्यूब की किताब जो है पुराने अहदनामा में से ये पहले लिखी गई, जबकि पैदाइश है और भी बहुत सारी बुक्स हैं, और इसको बहुत पुराने अहदनामे की पुरानी किताबों में से हम इसको सीखते हैं कि ये बहुत पुरानी किताब है। जब हम अय्यूब की जिंदगी को देखते हैं, उसके आगाज को देखते हैं, याद रखें प्यारे बहनों भाइयों, लोग हमारे आगाज को बहुत कम देखते हैं, हमारे अंजाम पे लोग नजर करते हैं। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो लोग हमारा जाना देखते हैं, जब हम इस दुनिया से जब आए थे उस वक्त लोग भूल जाते हैं। और आज हम देखेंगे हमारा माजी कैसा था और किस तरह का था, कैसे हालात थे, लेकिन हमारा मुस्तकबिल जो है, हमारा ब्राइटर जो है, वो फ्यूचर बड़ा ब्राइट होगा, बड़ा जबरदस्त होगा। खुदा एक नई बेदारी हमारी जिंदगियों में करने वाला है। और मैं जब इसको सीख रहा था तो इसका आगाज हम देखते हैं। आप सबने पहले इसको बड़ा सुना है अक्सर, इसके बच्चों के बारे में भी। 7 इसके बेटे थे, 3 बेटियां थी, और इसके पास 7,000 भेड़ें थी और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां थी और बहुत से नौकर चाकर, और अहले मशरक में ये बड़ा आदमी था। इसका आगाज जो था वो हम देखते हैं कि अच्छा था, लेकिन इसके आगाज के साथ ही क्या हुआ कि एक टेस्ट इसकी जिंदगी में आता है, और इस टेस्ट में इसका घर बार उजड़ जाता है। और इसकी खिदमत जो थी, ये एक खिदमत करने वाला था, मिनिस्टर था ये, और बहुत सारे इसके प्रोजेक्ट थे खिदमत के बड़े अच्छे, लेकिन जब इसकी जिंदगी में एक टेस्ट आता है, इसकी खिदमत के प्रोजेक्ट, इसका खानदान और सब कुछ टूट जाता है, बिजनेस डेड हो जाता है। इत्थों तक पंजाबी में इसको कहते हैं, ये बेचारा रोड दे उत्ते आ गया, घर बार रिश्तेदार सब छोड़ गए, और यहां तक कि रिश्तेदार मिलना छोड़ गए, कहीं हमसे वो पैसे ना मांग ले, कहीं हमें कुछ डिमांड ना कर दे। और यहां तक कि इसकी बीवी जो इतने साल उसने जिंदगी के अच्छे लम्हात गुजारे अपने साथी के साथ और बड़ी बरकतों को एंजॉय किया, और अब वक्त था इस दुख में अपने साथी के साथ खिदमत में खड़ी होती और उसको दलेरी देती, लेकिन वो बड़ी मायूस कुन बात अपने खामद से करती है कि तू किस खुदा को अभी भी दुआ करता है, उसके आगे अभी भी पूजता है, छोड़ दे ऐसे खुदा पे लानत कर, तकफीर कर, छोड़ दे ऐसे खुदा के जिसने सब कुछ तेरा खत्म कर दिया है। वो कोई खुदा नहीं जो तेरा वो सुनता नहीं है, वो तेरी दुआओं का जवाब नहीं देता। और उसने बड़े ईमान के साथ अपने साथी को ये कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख ही पाए?
क्या हम खुदा के हाथ से सुख ही पाए और दुख ना पाए। सो पानी का गिलास। सो खुदा हमारी जिंदगी में समटाइम जैसे अगर 10 बादाम हम खाते हैं तो उसमें एक कड़वा भी आ जाए तो हमें बर्दाश्त करना है। समटाइम फौरी उसको थूक देते हैं, फेंक देते हैं। सो हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हात भी आते हैं, अगर खुशियां हैं खुदा देता है तो गम भी हमें बर्दाश्त करने की जरूरत है। सो ये था इसका आगाज, छोटा सा मैं थोड़ा सा तारफ इसका करवाया। इसका आगाज जो था वो शानदार था, लेकिन उसके बाद इसकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, दुख है, मुसीबतें हैं, बीमारी है, और ये ईमान पे कायम रहा, ये वफादार रहा अपने खुदा के साथ। लेकिन याद रखें, हमने यही सीखा, और अगरचे तेरा आगाज छोटा सा था, अगरचे तेरी जिंदगी में दुख बड़े थे, तू गिर गया था, लेकिन याद रख तेरा अंजाम जो है वो बहुत बड़ा होगा, तू बड़ा ब्लेस्ड होगा, तू हाईली ब्लेस्ड होगा, मैं तुझे बड़ा बरकत करूंगा। हम इसकी जिंदगी के अंजाम पे जब देखते हैं तो अय्यूब की किताब उसका 42 बाब है और उसकी 12 आयत में आखिरी चैप्टर है, और इसकी 12 आयत में लिखा है, यूं खुदावन ने अय्यूब के आखिरी अय्याम में इब्तिदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी, और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदियां हो गईं। सो खुदा ने जो उसको बरकतें दी थी, खुदा ने उनको डबल कर दिया। डबल ब्लेसिंग खुदा हमें देना चाहता है। हमारा आगाज कैसा था, हम कब अपनी खिदमत के आगाज में कैसे थे, हमारा घराना कैसा था, हमारा इलाका कैसा था, लेकिन खुदा हमें मल्टीप्लाई करना चाहता है, हमें बढ़ाना चाहता है, और खुदा हमें ब्लेस्ड करना चाहता है जब हम वफादार रहते हैं, जब हम ईमान में कायम रहते हैं, जब हम उसके कलाम पर खड़े रहते हैं, तो खुदा हमें बाबरकत करता है। मेरा मजमून था आपके साथ मिलके कहेंगे, अच्छा आगाज, अच्छा इख्तिताम। स्टार्ट वेल, फिनिश वेल। लोग हमारे आगाज को नहीं देखते, लोग हमारे अंजाम को देखते हैं, हमारा अंजाम कैसा है। मैं लास्ट में बताऊंगा कि हमारा अंजाम कब होता है और वो कौन सा वक्त होता है, लोग हमारा अंजाम कब देखते हैं। सो एक और रेफरेंस मेरे साथ देखिएगा खुदा के पाक कलाम में से, नए अहदनामा में पालू अमाल की किताब उसका 9 बाब उसकी पहली आयत है। मैं चाहूंगा भाई सरफराज से कि वो अगर मेरे लिए इस आयत को पढ़ सकें। अमाल की किताब उसका 9 बाब है और उसकी आयत नंबर 1 है, पहली ही आयत है। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, यस यस। खुदा उनके कलाम में कुछ यूं लिखा है, अमाल की किताब उसका 9 बाब पहली आयत, और साउल जो अभी तक खुदावन के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तारीख पर पाए, ख्वा मर्द ख्वा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई सरफराज, बहुत शुक्रिया। और मैं आज इस खूबसूरत करैक्टर को आपके साथ मिलके सीख रहा हूं। पालूस की जिंदगी का आगाज, जिसका नाम साउल था, हम इसकी जिंदगी के आगाज को देखते हैं कि ये इसका आगाज कैसा था और ये किस तरह का आदमी था, और इसकी जिंदगी के आगाज में क्या क्या ये काम करने वाला था। और इसकी खिदमत का आगाज ही हम देखते हैं कि ये बड़ा डेंजरस मैन था। खास तौर पे ये शागिर्दों को धमकाने वाला था, शागिर्दों को डराने वाला था, उनको तंग करने वाला था, और यहां तक कि
ان کو قتل کرنے کی دن میں رہتا تھا, مواقع ڈھونڈتا رہتا تھا کہ میں کیسے ان کو قتل کروں, ان کو مار ڈالوں, ان کو قتل کر دوں. اور یہ اس کا تھوڑا سا کریکٹر ہے, اس کا آغاز ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا, یاد رکھیں لوگ ہمارے ماضی کو بھول جاتے ہیں, ہمارے اختتام کو یاد رکھتے ہیں. ہمارا آغاز کیسا ہی کیوں نہیں ہے, بعض کا ہمارا آغاز اچھا نہیں ہوتا. ممکن ہے میرا آغاز اچھا نہیں تھا, میں اچھا انسان نہیں تھا, میں جس گھرانے میں تھا ممکن ہے میرا گھرانہ اچھا نہیں تھا, خدا سے دور تھا, اور میں خود خدا سے دور تھا. میں خدا کی اس طور پہ بندگی اور پرستش نہیں کرتا تھا جس طور پہ مجھے خدا کی بندگی اور پرستش کرنے کی ضرورت تھی. لیکن خدا ہمارے آغاز کو نہیں, ہمارے انجام کو دیکھتا ہے, ہمارا انجام کیسا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پلوس کا آغاز اتنا اچھا نہیں ہے, یہ مسیح کے خلاف تھا اور یہ بڑا غلط انسان تھا. لیکن یاد رکھیں پچھلی باتوں کو یاد نہ کر, خدا ایک نیا کام کرنے والا ہے. اور نیا کام کیا ہے اس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں, اس کا انجام جو ہم دیکھتے ہیں پالوس کا, وہ ہے دوسرا تیموتھیوس, اس کا 4 باب ہے اور اس کی 7 آیت ہے. دوسرا تیموتھیوس اس کا 4 باب ہے اور اس کی 7 آیت ہے. لکھا ہے, میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے دوڑ کو ختم کر لیا, میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا, اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں. آمین. سو یاد رکھیں اس کا آغاز جو تھا وہ بڑا عجیب سا تھا, بڑا ڈینجرس تھا اور بڑا خدا سے دور تھا, لیکن اس کا انجام بہت ہی اچھا تھا. اور یہ کہتا خداوند میں نے اچھی کشتی لڑی ہے, میں نے تیرے لیے دکھ سہے ہیں. اگر ہم اس کی زندگی کے اس کشتی کو جانے تو ہمیں بڑی گہری باتیں ملتی ہیں. خاص طور پہ دوسرا کرنتھیوں کا خط ہے, اس کی 11 باب ہے, اور ہم اس میں کافی اس کے کشتی کو دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتا ہے خداوند میں محنتوں میں بہت زیادہ دکھ اٹھانے میں, بہت زیادہ قید میں, کوڑے کھانے میں, بارہا موت کے خطروں میں نے یہودیوں سے 5 بار کم 40 کوڑے کھائے, 3 بار بیعت لگے, سنسار کیا گیا, رات دن سمندر میں کاٹا, سفر میں قوم کے خطرے میں, ڈاکوؤں کے خطرے میں, بہن بھائیوں کے خطروں میں, خاص طور پہ ہمارے اپنے بھی زیادہ ہمارے لیے خطرے کا سبب بنتے ہیں. اور میں چند دن پہلے بلکہ 2-3 ماہ پہلے آئزک ٹی وی میں انور فضل صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے اور بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو مسیح ہیں, اگر ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہے تو ہمیں غیر قوم والوں سے کم ہوتا ہے, ہمیں اپنوں سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو یہ حقیقت ہے. سم ٹائم ہمارے گھر والے, ہمارے کلیسیا کے, ہمارے باہر والے جو ہیں, محلے والے لوگ, برادری والے لوگ, وہ ہمارے زیادہ اپوزیشن کرنے والے ہیں. اور ہم پلوس کو دیکھتے ہیں, اس نے بھی بڑے دکھ سہے, بڑی تکلیفیں, لیکن اس کا انجام بہت ہی اچھا تھا. اور یہ بائبل مقدس کے نئے عہد نامے کا یہ رسول اعظم ہے اور یہ ہیرو ہے نئے عہد نامے کا. اور اس نے آدھی سے زیادہ جو کتابیں ہیں نئے عہد نامے کی, اس نے خود لکھی ہیں. اور یہ مصیبتیں, دکھ اور خدمت میں بہت آگے تھا. اس کا انجام یہ کہتا ہے میں نے اچھی کشتی لڑی ہے, میں نے کوئی نکمی کشتی, کوئی نورا کشتی نہیں لڑی, میں اچھی کشتی, اچھی دوڑ کو میں نے جیتا ہے. اور
इसका अंजाम बहुत अच्छा था। याद रखें, लोग आज भी उसके अंजाम को जानते हैं, उसके आगाज को बहुत कम लोग बयान करते होंगे, उसके अंजाम को लोग ज्यादा प्रीच करते हैं कि वो इस तरह उसने खिदमत की है, लोग उसके आगाज को नहीं जानते। प्यारे बहनों भाइयों, याद रखें, लोग आपके भी आगाज को शायद भूल गए हों, लेकिन आपके मौजूदा और आपके लास्ट जो होगा, आपका मौजूदा जो स्टेटस है, लोग उसको ज्यादा देखते हैं, सुनते हैं, और उसको देख के वो अपनी जिंदगी में आपके बारे में एक राय, एक कमेंट जो है वो कायम करते हैं। मेरे साथ देखिएगा, एक और खूबसूरत हीरो है बाइबल का, पैदाइश की किताब उसका 37 बाब उसकी 28 आयत है। और यहाँ पे हम एक और नौजवान के बारे में सीखते हैं कि इसका आगाज कैसा था और इसका अंजाम भी किस तरह का था। सो आए मेरे साथ देखते हैं। मैं चाहता हूं कि जिसको भी खुदा का पाक रूह गाइड करे, वो इस रेफरेंस को मेरे लिए पढ़ दें। पैदाइश की किताब उसका 37 बाब है और 28 आयत है। पढ़ो। खुदावन के जिंदगी बख्श पाकलाम में कुछ यूं लिखा है, पैदाइश उसका 37 बाब उसकी 28 आयत में, फिर वो मदियानी सौदागर उधर से गुजरे, तब उन्होंने यूसुफ को खींचकर गड़े से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को बेच डाला, और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। आमीन। आमीन। थैंक यू बहना, बहुत शुक्रिया। सो हम इसका थोड़ा सा एक आगाज की तरफ मैंने आपकी नजर की है, आपको झलकी दी है। इसका आगाज कैसा था? ये अपने भाइयों में छोटा था, और ये खुदा इसको बड़े बड़े ख्वाब दिखाता था, और ये भाइयों को जब बताता था, भाई जेलस होते थे, और वो बताता कि मेरा एक पूला जो है गंदम का वो खड़ा है, और बाकी जो पूले हैं 12 पूले वो मुझे सिजदा कर रहे हैं। भाई जो है वो बड़े जेलस और हसद से भर जाते थे कि ये छोटा है और इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो इसी तरह इस तरह और भी ख्वाब भाइयों से वो हसद और जेलस में आ गए कि यार ये बंदा अजीब सा है, आप बड़ी इसको ही खुदा दिखाता रहता है। अचानक वो काम पे गए और बाप ने भेजा कि भाइयों का पता करके आओ। जैसे ही उन्होंने देखा भाइयों ने, उनके अंदर गुस्सा और जेलस की रूह आ गई। उन्होंने कहा कि अज दा जेड़े ख्वाब शाब ने सारे अज असी इहदे पूरे करने आ। और क्या किया? आते ही चंगी फैंटी लाई उन्होंने और उन्होंने खोज सट दिता, और उसको जब कुएं में फेंक दिया तो रूबन उसको तरस आया कि यार है तो फिर भी हमारा भाई, इसको निकाले, उसको बेच देते हैं। वो सामने से काफिला आ रहा है और मदियानियों का, उसमें पैसे भी मिल जाएंगे और ये भी मरेगा तो नहीं, लेकिन चलें हमसे दूर चला जाएगा, ख्वाब वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएंगे इसके। और क्या होता है, आगे जाता है, जब फोतीफार के घर में ये मुलाजमत करता है। उन्होंने भी आगे इसको जाके बेच दिया और ये मुलाजमत करता है। और वहां पे क्या होता है, उसकी वाइफ जो है इसके साथ बदी के लिए उसका ज़ेन बनता है, और ये बेचारा भाग जाता है, और फिर इसके ऊपर इल्जाम लग जाता है और ये जेल में चला जाता है। और इसकी जिंदगी का आगाज हम देखते हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं। और मैं पढ़ रहा था कि तकरीबन ये 10 साल जो है ये कैद में, मुख्तलिफ मुसीबतों में इसने काटे, मुश्किलात में, और ये कमिटेड रहा, खुदा के कलाम पे कायम रहा, खड़ा रहा, वफादारी के साथ ये खुदा के साथ चलता रहा। और क्या होता है कि जेल के अंदर खुदा इसको वहां से लेता है और महल में बैठा देता है। और हम देखते हैं जब पैदाइश की किताब उसका 41 बाब और उसकी 43 आयत में लिखा है, और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार कराकर उसके आगे आगे ये मनाती करवा दी कि घुटने टेको, और उसने उसे सारे मुल्के मिस्र का हाकम बना दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। याद रखें, आपके लोग हजारों दुश्मन हो जाएं, मारने वाले मर जाते हैं, लेकिन खुदा आपको जिंदा रखता है।
हम देखते हैं जब से मसीहत का आगाज हुआ है, याद रखें उस वक्त से हमारे मसीह ने, मैं आगे चल के बताऊंगा, जब हम यीशु मसीह की जिंदगी के आगाज को भी देखेंगे और इख्तिताम को भी, तो हम मसीहत को देखते हैं। जब से मसीहत का आगाज हुआ, माजरे वजूद में इस दुनिया पे आई, उस वक्त से मसीहत को दुख मिल रहे हैं। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा दुख, महालफत बर्दाश्त करने वाली किताब है तो वो बाइबल मुकद्दस है, खुदा का कलाम है। और अगर दुनिया में सबसे ज्यादा दुख सहने वाले हैं तो वो मसीही हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो काम करने वाले हैं, खिदमत का काम, वो भी मसीही हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो पढ़ी जाने वाली किताब है वो भी बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम है। सो प्यारे बहनों भाइयों, याद रखें, मसीहत को मारने वाले मर गए, लेकिन मसीहत आज भी जिंदा है। याद रखें, आपके दुश्मन हजारों हो सकते हैं, लेकिन जो जिस्म को कत्ल करते हैं लोग उससे डरते हैं, लेकिन जो रूह और जिस्म को कत्ल करता है उससे नहीं डरते। हमें जरूर है उससे डरना है जो रूह और जिस्म दोनों को, बदन को कत्ल करता है। हाय, और हम देखते हैं खुदा ने इसके आगाज को तो बड़ा ही परेशान कुन, दुख वाला, परेशानी वाला था, लेकिन खुदा ने इसका आगाज बहुत ही अच्छा किया। याद रखें, आप किन हालात से गुजरे हैं, आपको कितने दुख सहने पड़े हैं, लेकिन खुदा आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करने वाला है। आपका आगाज कैसा भी था, आपका अंजाम बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा होगा, और खुदा आपको आपकी जिंदगी में एक बड़े काम करने के लिए आपको तैयार करता है। ये आपकी प्रेपरेशन है। ये दुख, ये मुसीबतें आपकी जिंदगी को अगली सीढ़ियों पे लेकर जाते हैं। याद रखें, जितने पत्थर लोग आपके ऊपर फेंकते हैं, अगर आप उन्हीं पत्थरों की सीढ़ी बना के आगे बढ़ते जाएं और आप उनसे आगे बढ़ जाते हैं, और आपको खुदा आपकी मंजिल पर ले जाता है। उन आजमाइशों और दुखों की सीढ़ी से आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, और खुदावंद आपको अपनी मंजिल के लिए तैयार करता है। ये दुख लेकर आता है कि आप तैयार हो सके। सो मैं जल्दी से अपने कलाम के आखिरी हिस्से में हूं, और आपके साथ मिलके एक खूबसूरत करैक्टर को देखना चाहता हूं। और मुमकिन है ये करैक्टर जो है आपने पहले भी पढ़ा हो, लेकिन इसके बारे में इस तौर पे शायद आपने ना जाना हो। आए मेरे साथ सीखें। पहला सैमुएल उसका 17 बाब है, उसकी 51 आयत है। पहला सैमुएल उसका 17 बाब, उसकी आयत नंबर 51 है, 51। और यहाँ पे लिखा है, और दाऊद दौड़कर उस फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसे कत्ल किया और उसी से उसका सर काट डाला। और फिलिस्तीनियों ने जो देखा कि उनका पहलवान मारा गया तो वो भागे। और जब हम इसकी दाऊद की जिंदगी की खूबियों को देखते हैं, पहला सैमुएल उसका 16 बाब, उसकी 18 आयत में लिखा है, तब जवानों में से एक यूं बोल उठा के, देख, मैंने बैतलहम के यसी के एक बेटे को देखा जो बजाने में उस्ताद और जबरदस्त सूरमा और जंगी मर्द और गुफ्तगू में साहिब तमीज और खूबसूरत आदमी है, और खुदावंद उसके साथ है। हम देखते हैं इसने जाती जूलियत, जो एक फिलिस्तीनियों का बहुत बड़ा सूरमा था, 40 दिन रात ललकारता था, और साउल की फौज और उसके बड़े बड़े सिपासलार और बड़े सूरमा जो था वो सर झुका के गुजर जाते थे, कानों को बंद कर लेते थे, और उनकी जो ज़हन में जो खुदा की गैरत थी वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस नौजवान के दिल में खुदा की गैरत थी, जज्बा था, और ये बड़ा ही, आप देख सकते हैं, ये चरवाहा था,
اور یہ بجانے میں بڑا استاد تھا، یہ زبردست سورما تھا، جنگی مرد تھا، اور یہ گفتگو میں بڑا صاحب تمیز تھا. خداوند اس کے ساتھ تھا، یہ خوبصورت آدمی تھا. اور یہاں تک کہ جب یہ جنگ جیتتا تھا اور جب یہ گزرتا تھا، لوگ گلیوں میں سڑکوں پہ آ کے دیکھتے تھے اور سول کے بارے میں کہتے تھے کہ اس نے تو سول نے سینکڑوں کو مارا، اس نے ہزاروں کو مارا، اور اس نے فتح خدا نے اس کو بخشی، اور جا بھی جاتا تھا خدا نے اس کو فتح ہی دی ہے. میں سیکھ رہا تھا کہ اس نے تقریباً 66 لڑائیاں لڑی اور ایک بھی جنگ نہیں ہارا، بلکہ ہر جنگ یہ جیتتا رہا. لیکن اس کی زندگی کے انجام کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ بڑا ہی خطرناک ہے. اس کا آغاز بہت اچھا ہے. پوری دنیا میں 3 بڑے مذاہب، مذہب اسلام، مذہب مسیحیت اور یہودی، اس کو ایک بہت بڑا بادشاہ مانتے ہیں. یہاں تک کہ دنیا میں جتنے بادشاہ گزرے، ایسا زبردست بادشاہ بہت کم ہوا. اور جب ہم دیکھتے ہیں اس کی زندگی کے انجام کو، تو آئے میرے ساتھ دیکھیے گا، آپ کو اس کا انجام تھوڑا سا دکھاتے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے خدا کو کس طور پہ یہ یاد کرتا ہے. پہلا سلاطین اس کا 11 باب ہے، اس کی 4 آیت ہے. پہلا سلاطین 11 باب اس کی 4 آیت. میں اپنے کلام کے آخری حصے میں ہوں، اور یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ جب سلیمان بڈھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا، جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا. سلیمان بادشاہ، اس کی زندگی کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بڑا ہی بابرکت اور ہائیلی بلیسڈ آدمی تھا، اور اس کی زندگی کا آغاز ہی بھی بڑا شاندار تھا. باپ کی طرح بیٹے کی زندگی کا آغاز بھی بڑا شاندار ہے. اور اس کے آغاز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے پہلا سلاطین 3 باب اس کی 12 آیت میں، پہلا سلاطین 3 کی 12 میں لکھا ہے، سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا، میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا ہے، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا. اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بعد شاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا. آمین آمین، ہاللویہ ہاللویہ، پریز گاڈ. سو میں دیکھتے ہیں کہ جتنے بادشاہ گزرے ان میں سے کوئی بھی سلیمان بادشاہ، داؤد بادشاہ کی طرح نہ ہوا، اور نہ کوئی لکھا ہے ہوگا تیری مانند. اس کی مانند کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ ہوا. سو ایسا زبردست سورما اور بادشاہ اس باپ اور بیٹے کو، لیکن ان دونوں کی زندگی کا انجام بڑا ہی خطرناک تھا. اور جب ہم اس کی زندگی کے ایام کو، سلیمان کو دیکھتے ہیں تو پہلا سلاطین اس کی 11 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور اس کے پاس 700 شہزادیاں، اس کی بیویاں اور 300 خرمیں تھیں، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا. سوری، 700 اس کی بیویاں تھیں، 300 خرمیں جو اس کی بیویاں تھیں، ان سب نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف پھیر لیا. یاد رکھیں، جب ہمارے ریلیشن غیر ایمانداروں کے ساتھ بن جاتے ہیں تو ہماری بلیسنگ، ہماری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور کیا ہوا، ان عورتوں نے بھی اپنے اپنے دیوتاؤں کی طرف اپنے اس خامند کو، شوہر سلیمان بادشاہ کو پھیر لیا.
اور لکھا ہے اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا۔ یاد رکھیں، میرا مضمون ہے، میرے ساتھ مل کے کہیے گا، اچھا آغاز اچھا اختتام، اچھا آغاز اچھا اختتام، سٹارٹ ویل فنش ویل۔ اگرچہ تیرا آغاز چھوٹا سا تھا، تیرا آغاز چھوٹا سا تھا، لیکن تو بھی تیرا انجام بہت بڑا ہوتا، تیرا انجام بہت بڑا ہوگا اگر تو خداوند اپنے خدا کے ساتھ قائم رہے گا۔ خدا تجھے ہائیلی بلیسڈ کرے گا اگر تو قائم رہے گا۔ سوری، سوائے میرے ساتھ ایک آخری حصے میں ہوں، سیکھیں گے قضات کی کتاب، اس کا 13 باب ہے، 5 آیت ہے۔ کوئی بھی میرے لیے یہ آیت اگر پڑھ دے، قضات 13 باب اس کی 5 آیت ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خداوند کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ آمین، آمین، پریز گاڈ، خداوند کی تعریف ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں سمسون کی پیدائش جو ہے وہ شروع ہی سے خدا نے اس کی والدہ کو اور اس کو یہ میسج دیا کہ تیرا جو بیٹا ہوگا وہ نذیر ہوگا، اس کے سر پہ اس طرح نہیں پھرے گا۔ نذیر کے لیے 3 باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کے سر پہ اس طرح نہیں استعمال ہوتا، بال اس کے کٹائے نہیں جاتے۔ دوسرا، وہ کسی لاش کو نہیں چھوتا، ڈیڈ کو کسی اس کو نہیں چھوتا۔ اور تیسرا جو ہے وہ کسی ناپاک چیز کو، نشہ چیز کو، اس کو نہیں پیتا۔ یہ 3 بڑی خاص نذیر کی نشانیاں ہیں، اور خدا نے اس کو نذیر کیا تھا، جیسے اس نے سیمول کو بھی نذیر کیا تھا، اور یہ بھی خدا کا نذیر تھا، یعنی شروع ہی سے ماں کے پیٹ ہی سے یہ ہائیلی بلیسڈ تھا، یہ مسح شدہ تھا۔ اور اس کی زندگی میں ہم اس کے کاموں کو دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا سورما تھا، اس کا آغاز بہت اچھا تھا، اور اس کی زندگی بڑی بابرکت تھی، اور اس کو خدا نے اتنی طاقت دی تھی کہ یہ گدھے کے جبڑے سے اس نے ہزاروں کو مار دیا۔ گدھا جو ہے وہ ناپاک جانور ہے، اور جو نذیر ہوتا ہے وہ کسی بھی ناپاک چیز کو نہیں چھوتا، اور اس کی زندگی کا انجام جب ہم دیکھتے ہیں وہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں قضات کی کتاب، اس کا 16 باب اس کی 28 آیت ہے۔ جی پاسٹر عادل صاحب پلیز آپ میرے لیے ذرا پڑھ دیجیے گا۔ میں لکھا ہے، تب شمشون نے خداوند سے فریاد کی کہ اور کہا، اے مالک خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر، اور میں تیری منت کرتا ہوں کہ اے خدا فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بخش، تاکہ میں یکبارگی فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں۔ آمین، آمین۔ اور اس کی زندگی کا انجام جو ہے وہ بڑا ہی ٹیریبل ہے، بڑا خوفناک ہے، اور یہ بدلہ لینے کے لیے خدا سے کہتا، خدا مجھے ایک دفعہ اور کو دے کہ میں ان سے بدلہ لے لوں۔ اور خدا نے شروع سے اس کو نذیر بنایا تھا۔ یاد رکھیں، خدا جو ہے وہ جب برکت دے دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا۔ اس نے اس کو پہلے ہی سے ماں کے پیٹ سے نذیر کیا تھا، اور خدا نے پھر اس کو ایک دفعہ پھر قوت دی، اور کیا ہوا کہ اس نے بدلہ لینے کے لیے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے
इंतकाम लेना मेरा काम है और बदला लेना भी मेरा काम है। तो अपने दुश्मन का बदला ना ले, इंतकाम ना ले। और इसने बदला लेने के लिए खुदा से कुव्वत मांगी, और क्या हुआ, खुद भी मर गया और अपने दुश्मनों को भी मार दिया। और इसकी जिंदगी का अंजाम बड़ा ही खतरनाक है। एक लड़की दलैला नामी से इसका इश्क हो जाता है और इसकी जिंदगी के अयाम जो हैं वो बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। आज भी हमारे कल्चर में देखा जाए तो खास तौर पे चर्चेस में, क्वायर में बड़ी ये प्रॉब्लम है कि हमारे नौजवान बेटे और बेटियां जब इस तरफ आ जाते हैं तो वो ये समझ लेते हैं शायद यही खुदा की मर्जी है, मेरी शादी फलां से हो, और वो इस तरीके से फ्रेंडशिप और दोस्ती के चक्कर में अपनी खिदमत, अपनी मिनिस्ट्री को खत्म कर बैठते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों का बड़ा खतरनाक अंजाम हुआ है। सो इसका भी इसी तरह हुआ, और एक लीडर को, एक पासबान को खास तौर पे अपनी जिंदगी में पाकीज़गी को कायम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदावंद की 7 आंखें हैं जो हर वक्त हमें देखती रहती हैं। और लिखा है खुदावंद की आंखें पाक हैं और वो बदी को देख नहीं सकती। और मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। याद रखें, जिनके दिल पाक नहीं हैं, मुमकिन है खुदा वो शिफा के तौर पे भी खुदा उनको इस्तेमाल करता है, वो हीलिंग भी हो रही है, मौजज़े भी हो रहे हैं, लेकिन अगर उनके दिल पाक नहीं है तो वो खुदा को कभी देखेंगे नहीं। मेरे साथ रहिएगा। आखिरी रेफरेंस मैं आपके साथ मिलके पढ़ना चाहता हूँ। मेरा मजमून था, स्टार्ट में मैंने जो बताया था, अच्छा आगाज, अच्छा इख्तिताम। अपनी जिंदगी का आगाज अच्छा करें, आपका इख्तिताम भी अच्छा होगा। अगर फर्ज करें आपका आगाज अच्छा नहीं है तो भी अपने इख्तिताम पर निगाह करें, आपका इख्तिताम कैसा है। आए मेरे साथ देखिएगा, मत्ती की अंजील है, उसका 2 बाब उसकी 20 आयत है। मत्ती 2:20 मेरे साथ देखिएगा। लिखा है, उठ इस बच्चे और इसकी माँ को लेकर इस्राएल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान की ख्वात है वो मर गए। आमीन, आमीन, थैंक यू। हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह की जिंदगी बचपन में थी, वो बड़े ही दुखों वाली थी। और जब वो पैदा ही हुआ तो आसमान से तो बड़ी खुशियां थी, लेकिन जमीन पे बड़ी नफरत, बड़े गुस्से का इजहार किया गया। बादशाह को पता चला, उसने कहा इसको इसको ही नहीं बल्कि इस उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो सब कत्ल किए जाएं, उनको मार दिया जाए। और बच्चों का मासूम बच्चों का खून बहाया दिया गया था। जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई, इतना दुख और मातम हुआ ताकि इस यीशु की को भी खत्म कर दिया जाए। और जो बच्चे के जान के ख्वाह थे, जब वो मर गए तो फिर खुदा के फरिश्ता ने क्या कहा, अब तू जा। और हम इख्तिताम की तरफ देखते हैं, यीशु मसीह का जो हमारा मुनज्जी है, दोनों जहां का मालिक है, जब हम उसकी जिंदगी के अंजाम को देखते हैं तो मेरे साथ देखिए यूहन्ना की अंजील, उसका 19 बाब और 30 आयत है। यूहन्ना 19 की 30 मेरे साथ देखिएगा जी। पास्टर आदिल। जब यीशु ने वो सिर का पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन, आमीन। इसको हम इंग्लिश में ये कह सकते हैं, इट हैज फिनिश्ड, यानी मुकम्मल हो चुका, कंप्लीटेड। काम जो दिया गया था, जिम्मेदारी जो सौंपी गई थी, उसने कहा मैंने मुकम्मल किया, मैंने पूरा कर दिया है। मैंने जो निजात का काम ए बाप तूने मुझे दिया था, मैंने वो पूरा किया है। मैंने वफादारी के साथ ताबेदारी की है और अपनी जान देने तक भी वो वफादार रहा, और जिंदगी का ताज उसको मिला, और क्राउन ऑफ लाइफ हम देखते हैं कि वो बादशाह का बादशाह है, जो मर गया, दफन हो रहा, तीसरे दिन जी उठा और मेरे रब के लिए एक
अजीब निजात का सॉरी निजात का अजीब काम किया। और जब हम देखते हैं आगाज को, बहुत सारे लोग कहते हैं जब यीशु मसीह मौजज़े दिखाता था और बड़े बड़े काम करता था, तो कहते हैं क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीजें निकल सकती है? वो इलाका कौन सा है, ये किस इलाके की बात करें, उसके माँ बाप कैसे हैं? आज भी लोग जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। इनके माजी को हम जानते हैं, इनके माँ बाप को हम जानते हैं, लेकिन थैंक्स गॉड के खुदा इस वक्त मैं भाई आदिल है और पास्टर सरफराज और बहुत से हमारे बहन भाई इस वक्त ऑनलाइन है। खुदा हमारे मुस्तकबिल को एक बड़ा जबरदस्त करने वाला है और बड़े जलाल के साथ हमें इस्तेमाल कर रहा है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा यीशु मसीह का। और मैंने आपको बताया था कि हमारा अंजाम कब होगा। याद रखें, हमारा जो प्रेजेंट है, हमारा जो मौजूदा है, हमारा किसी वक्त भी अंजाम हो सकता है। इसलिए अपने प्रेजेंट को, अपने मौजूदा को, अपने हाल को आप बड़ा ही बाबरकत करें, ताकि आपकी जिंदगी जब इस दुनिया से जाए तो लोग आपके अंजाम को देखें, आपके अंजाम पे नजर करें, आपकी जिंदगी को देखें कि वो इस दुनिया से गया है तो ये उसके पास बरकत थी, ये काम की उसने, और उसने वाकई ही एक अच्छा काम किया। इस जिंदगी में वो अच्छी दौड़ दौड़ा है। याद रखें, अभी से अपनी दौड़ को, अपनी कुश्ती को मजबूत करना शुरू कर दें। किसी वक्त भी मेरे और आपकी जिंदगी का अंजाम इख्तिताम हो सकता है, लेकिन जब हम जाएं स्टीफन की तरह, याद रखें, जब उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखता क्या है कि बाप के जो दाएं तरफ खुदावंद यीशु मसीह जो बैठे हुए थे वो खड़े हो जाते हैं उसको वेलकम करने के लिए। वेल डन माय सन, वेल डन माय डिसाइपल, मेरे अच्छे बेटे, तूने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैं तुझे अप्रिशिएट करता हूं। याद रखे, जब हम भी इस दुनिया से जाएं तो याद रखे, मेरा और आपका मालिक मुनज्जी दो जहां जब खड़ा हो जाए तो इससे बढ़ के मेरे और आपके लिए क्या ही खुशबख्ती हो सकती है कि मेरा और आपका जिंदा खुदा हमारे लिए उठ खड़ा हो, अप्रिशिएट करे। तो याद रखें, ऐसी कुश्ती लड़े, ऐसी जिंदगी गुजारे कि हम जब इस दुनिया के से अपनी आंखें बंद करें तो हमारी रूहानी आंखें खुली हो और बाप हमें वेलकम कर रहा हो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। खुदावंद आपको सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। थैंक यू। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, इस जिंदा और पाक कलाम पे हम गौर करते हैं जो आज हमने सीखा है। आज इस कलाम पर गौर करते हैं। आप भी इन एक करैक्टर में से कोई करैक्टर हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी जिंदगी में अयूब हो सकता है आप अपनी जिंदगी में यूसुफ हों कि आपके साथ ऐसे मुश्किलात पेश आई हो सकता है आप अपनी जिंदगी में दाऊद हो सकता है आप अपनी जिंदगी में सुलेमान हो सकता है आप अपनी जिंदगी में सैमसन हो सकता है आप अपनी जिंदगी में दिलाला हो सकता है आप अपनी जिंदगी में उस मसीहा जैसे हों, उसके फॉलोअर, उसके शागिर्द हों। आप अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए और खुदावन आपकी जिंदगियों को आपके नेक अंजाम की उम्मीद बख्शना चाहता है। उसके ख्यालात आपके लिए सलामती के हैं। मेरे अजीजों, इस कलाम पर गौर करेंगे, चल लम्हे इस कलाम पर सभी गौर करेंगे। अपनी आंखों को बंद कर दीजिएगा। हम बिल्कुल अपनी मीटिंग के इख्तितामिया हिस्सा में हैं। इस कलाम को अपनी जिंदगी में लीजिएगा कि जब आप मसीही हैं, आप चुने गए हैं, आप अलहदा किए गए हैं, तो खुदावंद आपकी जिंदगी के लिए सलामती के ख्यालात रखता है ताकि आपको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शे, बुराई के ख्यालात नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया, हरि शै जो सहलेंदी। आइए सब गौर करते हैं इस कलाम पर। गावे हम यहोवा दी
Hamd Yehovah Gabe hum Yehovah di Hamd Yehovah Gabe hum Yehovah di Mehriban 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 खुदावन आप सबकी जिंदगी पर रहम कर चुका है। वो आपको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। आप चुने हुए लोग हैं, आप अलग किए हुए लोग हैं। मत घबराइए इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से जिनसे आप पर्सनली जूझ रहे हैं। हाँ, आपका आगाज बुरा हो सकता है। हाँ, आपका आगाज एक ऐसे खानदान से हो सकता है जो सब खुदा से दूर हो, जो बदी में हो। पर जब खुदा ने आपको चुना है तो आप अपने खानदान के लिए कालिब हो सकते हैं। आप अपने खानदान के लिए यशवा हो सकते हैं। आप अपने खानदान के लिए मूसा हो सकते हैं। आइए इस खिदमत को इख्तिताम कीजिएगा जो खुदावन ने आपको दी है। इन तमाम तर बातों के लिए, हम सब की बरकत के लिए, इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए खुदावन के खादम आली जनाब पास्टर यूसुफ साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे और वही हमें आखिरी दुआ और कलमात से भी रुखसत करेंगे। पास्टर यूसुफ नाज जी सर। हालेलुया 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 हालेलुया। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे आज के इस दिए हुए सुंदर और हसीन मौका के लिए कि खुदावन तूने हमें सबको दूर नजदीक से जमा किया और अपने हुजूर, अपने सुंदर चरणों में आने का फजल बख्शा, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। जलाल के बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने दुआओं में, मनाजातों में, इल्तिजाओं में अपने नाम को जलाल दिया। खुदा प्रस्तश में तूने बेटे बेटियों को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल किया और खुदावन तूने हमें ये बरकत बख्शी कि हम तेरे हुजूर तेरी आवाज को सुन सके। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादम के लिए, तेरे सुरमा, तेरे गुआ, तेरे बेटा, तेरे ममसू के लिए, जिसको खुदावन तूने आज अपने जलाल के लिए अपनी आवाज बनाकर इस्तेमाल किया। पास्टर नदीम विक्टर के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद यीशु के नाम से तेरे बंदा के मुंह से निकलने वाला हर एक लफ्ज खुदावंद हमारे लिए और खुदावंद तमाम इस जूम मीटिंग के लिए शुक्रगुजारी का बायस हो। शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे खादम के लिए कि आज तूने अपने खादम को हमारी बरकत के लिए इस्तेमाल किया। और खुदावंद हमने आज सीखा कि जैसा आगाज वैसा अंजाम। और बेशक खुदावंद तू हमारे आगाज कैसे भी हूं, तू अंजाम अच्छे करता है। आगाज में हम कैसे ही क्यों ना हूं, लेकिन अंजाम में तू हमें ब्लेस्ड करता है। तेरे खादम के वसीला से आज जो कुछ हमने सीखा, तेरा शुक्र हो। तूने अयूब के वसीला से खुदा हमें सिखाया, अयूब की जिंदगी पर गौर किया, खुदा यूसुफ की जिंदगी पर गौर किया, शमसून की जिंदगी पर, खुदावन दाऊद की जिंदगी पर, सुलेमान की जिंदगी पर, खुदावन सबसे बढ़कर खुदावंद हमने तेरे बेटे की जिंदगी पर जब गौर किया तो हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने खादम को और गहरे में ले चल और गहरे तौर पर अपने कलाम के भेदों को अय्या कर,
ताकि खुदावन तेरा खादम दुनिया के कोने कोने तक तेरे कलाम की और तेरी अंजील की बिशारत दे सके। आसमानी बाप, जब हम एक दूसरे से जुदा होते हैं तो हमसे कभी जुदा ना होना है। एक एक बेटी को, एक एक बेटे को, एक एक भाई को, बहन को बरकत देना खुदावन। खुदावन यीशु के नाम से इनको ख्वाब रोया में खुदावन इनसे हम कलाम होना है, ख्वाब रोया में इनसे कलाम करना है, इनसे बातें करना खुदावन, ताकि तेरी बेटियां, तेरे बेटे खुदावन तुझ में, तेरे जलाल, तेरे इरफान में बढ़ते चले जाए। तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी इनकी जिंदगियों में से इज्जत और जलाल पाए, बड़ी बरकत दे खुदावंद यीशु के नाम से, जिसने हमें ये सिखाया कि पास तुम इस तरह दुआ किया करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिससे हम अपने कसूरवारों के कसूर मुआफ करते हैं तो हमारे कसूर हमें मुआफ फरमा, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हों। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक इस जूम मीटिंग के साथ और इस जूम ऐप को बनाने वाले बंदा के साथ, खुदा के खादम पास्टर आदिल के साथ, आज के पैगंबर के साथ, और इस ऑनलाइन चर्च की एक एक बेटी, बेटे, बहन, भाई, बुजुर्ग के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ, दी गॉड लव मोमेंट मिनिस्ट्री के साथ अब्दुल्लाबाद होता रहे। इस्राएल की सलामती हो। आमीन। आमीन।